Farida, and today we are going to discuss myocardial infarction called as heart attack. Introduction. Myocardial infarction produced after prolonged myocardial ischemia. Commonly it is associated with the coronary artery thrombosis at the site of atherosclerotic stenosis. Order of frequency in coronary arteries are anterior descending branch of the left coronary artery. पहले ये बताओ कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का डेफिनेशन वापस बताओ. प्रोलॉन्ग इश्कीमिया लीडिंग टू मायोकार्डियल टिश्यू डेथ और डैमेज, which is proved by either imaging या फिर कार्डियक मार्कर्स जो रहते हैं वो बढ़ते हैं. तो इंफ्राक्ट अगर बोलना है आपको तो इश्कीमिया लीडिंग टू इश्कीमिया और एनी अदर कॉजेस वो अपन करते डिस्कस which lead to मायोकार्डियल टिश्यू डेथ और नेक्रोसिस और डैमेज जो होता है उसको इंफ्राक्शन बोलते हैं, राइट. Order of frequency 75% cases में myocardial infarction anterior descending branch of left coronary artery में होता, and 20% cases में right coronary artery and 5 to 10% cases में circumflex branch involved रहती. Causes, etiology of myocardial infarction. Most common cause of myocardial infarction is coronary thrombosis, but there are so many other causes where myocardial infarction can also occur, such as coronary vessel spasm. In coronary vessel spasm, there is narrowing of the blood vessels, which leads to infarction. Other causes are prolonged hypotension. If there is prolonged hypotension, BP is progressively declining. It can also lead to myocardial infarction. Coronary embolism. There are so many causes of coronary embolism that can also lead to myocardial infarction. Dissection of the aortic root. If there is dissection of aorta, then inner layers जो है वो उसके dissection की वजह से भी myocardial infarction हो सकता due to prolonged hypoxia. Then vasculitis. Inflammation of the blood vessel can also lead to the myocardial infarction. Myocardial infarction can also be seen in the cocaine addiction. So it is also a cause of myocardial infarction. Infarction mainly depends upon the size of blood vessel, rapidity of onset, and the collateral circulation. अभी अपने causes बताया, right? So depend upon causes of myocardial infarction. There are types, classification of myocardial infarction: type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. तो type 1 मतलब infarction caused because of thrombus, जैसे मैंने भी बताया, which is commonest cause. Type 2 मतलब when there is demand supply mismatch, जैसे आपने क्या बताया, एम्बोलाई बताया या फिर सीवियर एनीमिया बताया, हाइपोटेंशन बताया. इन सारी चीज़ों की वजह से जो एमआई होता, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता, वो टाइप 2 में जाता. टाइप 3 मतलब सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट होता और आगे जाके प्रूव होता कि इट वाज एमआई. टाइप 4 मतलब जो भूल गए, परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी करते करते भी, पीसीआर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करते वक्त भी उसकी वजह से एमआई आ सकता. उसमें दो टाइप रहते. ए मतलब ड्यूरिंग पीसीआई इंटरवेंशन की वजह से एमआई बैठ रहा, और बी मतलब तुमने एंजियोप्लास्टी कर दिया, एंजियोप्लास्टी में पोस्ट प्लास्टी स्टेन थ्रोम्बोसिस हो, उसके वजह से भी एमआई हो सकता है, ठीक है. और लास्ट फिफ्थ कॉज कौन सा है? पोस्ट सीएबीजी एमआई, सीएबीजी की वजह से भी एमआई. तो मतलब फर्स्ट कॉज, अगर तुमको कॉजेज देखने हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन डिपेंडिंग अपॉन एटियोलॉजी अगर बोलना है, जैसे आपने कॉजेज बोले ऑलमोस्ट सब कवर होते. टाइप 1 मतलब थ्रोम्बोसिस की वजह से, टाइप 2 मतलब डिमांड सप्लाई मिसमैच, जैसे कि सीवियर एनीमिया रहा, हाइपोटेंशन रहा, एम्बोलिक फिनोमेना रहा, ये सारी चीज़ें आती. टाइप 3 मतलब सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और आफ्टर दैट तुमको डायग्नोस हुआ कि अब ये कार्डियक मतलब अननोन etiology cardiac arrest and it was proven to happen because of thrombus or any other mechanism. टाइप 4 मतलब परक्यूटेनियस इंटरवेंशन की वजह से होता है. ए मतलब जस्ट परक्यूटेनियस इंटरवेंशन. टाइप बी मतलब 4 का बी मतलब एंजियोप्लास्टी करने के बाद में अगर फॉर पेशेंट है
अंजाइना वाला पेशेंट तुम्हारे पास आया, क्रोनिक अंजाइना का है, एंजियोग्राफी किया, 90 ब्लॉक मिला है लेडी में, एंजियोग्राफी करे, प्लास्टिक करे, प्लास्टिक करने के बाद में वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए या आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखे। नेक्स्ट डे पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू होगा और ईसीजी पे एसटी डिविजन है, तो ये क्या है, एमआई है, लेकिन रीजन पोस्ट प्लास्टिक, तो ये टाइप 4 में जाते हैं। और 5 नंबर केस में पोस्ट सीएबीजी या ड्यूरिंग सीएबीजी अगर पेशेंट को एमआई होता है तो उसमें जाता है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर एमआई का पूछा तो देयर आर 5 क्लासेस। आगे टाइप ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन ट्रांसम्यूरल है और सब इंडोकार्डियल। इन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन whole thickness of myocardium is involved and there is development of Q wave. And in subendocardial, whole thickness is not involved and there is no development of Q wave. Another type, STEMI and non-STEMI. STEMI में there is ST elevation and in non-STEMI there is no ST elevation and the obstruction is incomplete, but again it is causing necrosis of the myocardium, so it is included in myocardial infarction. समझे? स्टेमी स्टेमी समझे या नहीं समझे? नहीं समझे पूछो। स्टेमी म्हणजे ईसीजी वर ईसीजी पे एसटी एलिवेशन आए हैं, पहला डिफरेंस। नॉन स्टेमी मतलब ईसीजी पे एसटी डिप्रेशन नहीं है, नहीं भी है लेकिन मायोकार्डियल डैमेज है। तो अगर कार्डियक मार्कर देखें तो एलिवेटेड है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, एलिवेटेड कार्डियक मार्कर्स है, मतलब मायोकार्डियल टिश्यू को डैमेज है। लेकिन एक ईसीजी पे तुमको एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एक ईसीजी पे एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन मतलब नॉन स्टेमी या नॉर्मल ईसीजी भी रह सकता कभी कभी। एन स्टेमी और स्टेमी, बेसिक पैथोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? स्टेमी मतलब क्या है कि तुम्हारे कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट जो ये है ल्यूमेन वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड कंप्लीट ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्टेड होने की वजह से इधर लार्ज एरिया है जो मायोकार्डियम का वो नेक्रोज हो गया। नॉन स्टेमी में क्या होता है, वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नियर कंप्लीट रहता है, मतलब थोड़ा ल्यूमेन खुला रहता है और उसकी बट ऑब्स्ट्रक्शन इतना सीवियर होता है कि आगे का जो परफ्यूजन है वो हैम्पर होता है और टिश्यू डैमेज रहता है। ठीक है, डेंजरस कौन सा है, स्टेमी या नॉन स्टेमी? डेफिनेटली, क्योंकि कंप्लीट यस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एसटी एलिवेटेड एमआई, नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। और क्या डिफरेंस है? क्योंकि डैमेज हुआ तो क्यू वेव आता है ईसीजी पे, आफ्टर सम टाइम क्यू वेव डेवलपमेंट का। और कुछ ट्रीटमेंट में फर्क है क्या? थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, एसटी एलिवेशन रहा तो थ्रोम्बोलाइसिस रहता, एसटी एलिवेशन नहीं रहा तो थ्रोम्बोलाइसिस नहीं रहता। ठीक है, आणि टीव्हीओ इन्व्हर्जन असेल तर? हां, टीव्ही इन्व्हर्जन तर मग त्याला स्टेजेस आहे पुढे। अच्छा, विथ टाइम ते वेगळं। एसटी डिप्रेशन किंवा नियर नॉर्मल एसटी सेगमेंट जर का असलं आणि कार्डियक मार्कर एलिवेटेड असले, पेशंटला सिम्पटम असले तर इट इज एनस्टेमी, नॉन एसटी रिलेटेड एमआय। आणि एसटी एलिवेशन असले तर एसटी एलिवेशन जर का असले तर तेच एसटी रिलेटेड एमआय। दोघांचं म्हणजे मेन फरक काय आहे, कारण मेजर कॅटेगरी काय, एक तर तुम्हाला प्रोग्नोसिस कळते हां, एक, आणि दुसरं वाला मैनेजमेंट मध्ये एकाला तुम्ही थ्रोम्बोलाइसिस करू शकता, एसटी रिलेटेड में थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, नॉन एसटी रिलेटेड में थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है, और बाकी सब ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, precipitating factor of myocardial infarction, physical exertion, emotional stress, anxiety, shoveling snow, heavy meal, hypotension. So these are the causes which can precipitate the myocardial infarction. मतलब अगर पेशेंट को ऑलरेडी स्टेबल अंजाइना है या अनस्टेबल अंजाइना है, ल्यूमेन पार्शियली ऑक्लूडेड है और उसमें ये इसमें से कोई फैक्टर रहा तो एमआई प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर करे क्या? नहीं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर इस्केमिक हार्ट डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? ओबेसिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स, इसको ओबेसिटी हो गई। टू रिस्क फैक्टर, एक मॉडिफाइबल रहते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रहते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब उसके लिए तुम कुछ खास नहीं कर सकते, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री हो गया, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ये रिस्क फैक्टर है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। अब मॉडिफाइबल कौन सा, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये भी आता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से है? स्मोकिंग है, ओबेसिटी आता है,
डिस्लिपिडेमिया आता है, अल्कोहलिज्म आता है, अदर एडिक्शन है. These are risk factor for ischemic heart disease and ultimately M. ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल. ठीक. Clinical picture, onset of myocardium is always acute and the symptoms appears commonly at the morning. मतलब मॉर्निंग में ही कॉमनली पेशेंट को सिम्टम्स अपियर होते चेस्ट पेन का सिम्टम्स because according to cardiac theory there is increased production of catecholamine during 6 am to 10 am. So myocardial infarction or attack patient को commonly जो है तो after getting up from bed we can see the symptoms. Pre-monitoring symptoms में vague discomfort है पेशेंट को in the chest. Patient में complain of breathlessness, anxiety, patient become restless. सिम्टम्स ड्यू टू इस्कीमिया की वजह से पेशेंट को जो चेस्ट पेन रहेगा वो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन रहेगा, बट अनलाइकली एज इन एंजाइना वी कैन सी पेन इज मोस्टली आफ्टर एक्सर्शन, बट इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन द पेन इज कॉमनली ड्यूरिंग रेस्ट आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम बेड और द पेन विल बी प्रोलॉन्ग, द पेन विल बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन and it will not relieved by nitroglyceride. As in angina, after GTN, the pain relieved as soon as we give the nitroglycerin, vasodilator. But in myocardial infarction, it will be not helpful in myocardial infarction. रेडियस होता है बट इतना. हाँ. आपने पहले चेस्ट पेन बताया, राइट? चेस्ट पेन जो है, चेस्ट पेन की कॉजेस क्या क्या है? What are the causes of chest pain? Respiratory, cardiac origin. Okay. Okay. Diaphragmatic, diaphragm. Anatomically क्या? Skin. Abrasion है, burn है, Blunt trauma. शिगल से तुम्हारा herpes मुळे पण होतं. डोकं abrasion, laceration किंवा बर्न आहे किंवा मग हर्पीज झुस्टर इन्फेक्शन, ये दिस ऑल कॉजेस ऑफ चेस्ट पेन अगर एनाटॉमिकली सेम लोकेशन में. एक सेकेंड, सी व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन चेस्ट पेन कॉज्ड बाय कार्डियक And non-cardiac. causes and chest pain caused by non-cardiac causes, है ना? तो muscle pain. for that you should know the causes of chest pain. ठीक है? फर्स्ट स्किन रिलेटेड, दूसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू सेलुलाइटिस की वजह से भी चेस्ट पेन होता है, अगर चेस्ट के एरिया में सेलुलाइटिस की वजह से भी होता है. ठीक है? उसके नीचे मसल एंड बोन फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा, फ्रैक्चर है, मसल स्पाज़म्स वगैरह. उसके नीचे प्लुरायटिस और इफ्युजन आणि न्यूमोथोरॅक्स मध्ये कंपॅरेटिव्हली थोडंसं कमी असतं, बट येस असतं. तो मेन कॉज ऑफ प्लुराइटिक चेस्ट पेन इज प्लुराइटिस. ठीक है? उसके नीचे लंग पैरेन्काइमा पेनफुल पेन सेंसिटिव है का लंग पैरेन्काइमा है या नहीं? लंग पैरेन्काइमा पेन सेंसिटिव है या नहीं? नहीं है. ठीक है? then why there is pain when there is pulmonary infarct or lobar pneumonia? होता ना, कफ करने के बाद कभी कभी चेस्ट पेन होता पेशेंट को, राइट? या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट रहते हैं, पेरिफेरल इंफ्राक्ट रहते हैं, उसमें चेस्ट पेन होता पेशेंट को. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पेरिफेरी का जो लंग पैरेन्काइमा रहता है वो अगर प्लूरा को अटैच है, जो लंग पैरेन्काइमा तुम्हारा प्लूरा को अटैच है, तो एक्चुअली वो लंग पैरेन्काइमा का पेन नहीं रहता, वो प्लूराइटिक पेन है. ठीक है? तो दैट पेन पेरिफेरल जो पल्मोनरी इंफ्राक्ट्स है या लोबार न्यूमोनियाज है, उसमें चेस्ट पेन कॉमन है. आगे हार्ट, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम, हार्ट का आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम. उसके बाद में मेन हार्ट, जैसे मैडम ने मायोकार्डाइटिस भी हो सकता, अंजाइना भी, अनस्टेबल अंजाइना, स्टेबल अंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी पेन होता. उसके पीछे एओर्टा, एओर्टिक डायसेक्शन में भी पेन होता. नाउ these all are and last हिस्टेरिकल. ये सारे कॉजेस है चेस्ट पेन के. नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि
the chest pain that is happening to patient is because of myocardial infarction or angina. ये कैसे बोलेंगे? There may be some radiating pain, like back pain, shoulder pain. हाँ, so for that आपको एक सेंटेंस में मुझे कार्डियक चेस्ट पेन डिफाइन करना है। कार्डियक चेस्ट पेन ऐसा होता है। Left sided, radiating to the left hand. Retrosternal left sided chest pain. Radiating to the left scapula and और कुछ स्कैपुला ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, ओपीडी देखो ना, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, रेडिएशन ऑफ पेन, ये सब कुछ बताओ एक इसमें। It is usually acute onset, retrosternal left sided pain which usually radiate to jaw or left hand. and scapula. Quality of pain is compressive. Compressing. जैसे कोई बड़ा पत्थर रखा है छाती पे या सीना दबा रहा है, Squeezing. yes. And then location, कहाँ पे लोकेशन होता है? Precordial. Usually it is precordial region मध्ये असतं आणि एरिया जो चेस्ट पेन का रहता है that is at least फिस्ट के इतना रहता है। लोग कोई बोल रहा है कि फक्त इथंच एका बोट इथं दुखतं, फक्त एक टिप ऑफ फिंगर अगर कोई रखा है चेस्ट पेन की जगह पे, यूजुअली दैट इज नॉट कार्डियक चेस्ट पेन, डिफ्यूज रहता है, ठीक है। एग्रीवेटिंग फैक्टर तो मैडम ने बोल दिए, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ये सारा, एंड रिलीविंग फैक्टर एनटीजी नाइट्रेट से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एक्यूट ऑनसेट एंड ड्यूरेशन कितनी देर तक रहता है? अगर मैं बोलूँ कि सर जोरात चमक निघते 1 मिनिटासाठी, 1 सेकंदासाठी जोरात चमक निघते आणि राहून जाते, इज इट कार्डियक चेस्ट पेन? नहीं, यूजुअली इट लास्ट फॉर मिनट 2 आवर्स, मिनट कम से कम 5-10 मिनट से लेके कुछ घंटे तक चेस्ट पेन रहता है। ये क्लासिकल क्राइटेरियाज है, क्लासिकल मतलब सिम्टम्स, Usually accompanied by sweating. yes, other symptoms, breathlessness, Associated. palpitation and sweating and all, ठीक है, not aggravated or relieved by movements। अगर कोई बोल रहा है मूवमेंट और कफ वगैरह, अगर कोई बोल रहा है कि सर हाथ हलवला तो छाती दुखते, तो यूजुअली मस्कुलोस्केलेटल में जाता है, या फिर कफ के साथ चेस्ट पेन होता है तो वो फ्लूरल में जाता है, ठीक है। एवरी चेस्ट पेन, हर चेस्ट पेन में इसीलिए निकालते हो तो चेस्ट दिखता ही है, बट एवरी चेस्ट पेन में स्किन देखना है, क्योंकि चेस्ट पेन, जो सीवियर चेस्ट पेन शिगल्स में भी होता है ना, शिगल्स मध्ये होतं खूप जास्त चेस्ट पेन, ठीक है। तो ये क्लासिकल है चेस्ट पेन का आपका Cardiac. यस, कार्डियक चेस्ट पेन। नेक्स्ट, On examination, we will see the patient is anxious, restless, in previous position, proper position में रहेगा patient due to pain, and then BP is continually progressively decline according to Zerich-Pistorius reflex. There is hypopnea, bradycardia and BP patient का BP भी जो है तो फॉल होगा, हाइपोटेंशन की तरफ जाएगा patient। इज इट अप्लाइड टू एवरी पेशेंट? नहीं, हर पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और मतलब हर पेशेंट में नहीं दिखेगा, कुछ पेशेंट में दिख सकता है। विच पेशेंट? यूजुअली इंफीरियर वॉल रहता है, या फिर राइट वेंट्रिकुलर इंफ्रैक्शन के वाले जो रहते हैं ना, उसमें ऐसा रहता है, ओके। पल्स रेट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टाइप। एंटीरियर वॉल एमआई में जो है तो टैकीकार्डिया रहेगा और इंफीरियर वॉल में ब्रैडीकार्डिया। सेंट्रल साइनोसिस में भी प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का, और अगर सीएफएफ है तो पल्सस अल्टरेंस में भी सी फेलियर में रेपिटेशन मिलेंगे, अल्टरेंस रहेगा, पल्सस अल्टरेंस रहेगा, मतलब जो पल्स रेट रहेगा उसमें हमको हाई पिच और लो पिच सुनाई देगा एट अ टाइम। ओके। Then heart sounds S1 and S2. This sound will not be differentiable. Tic-tac rhythm will be present. In some cases we can hear the gallop rhythm. Gallop rhythm, atrial gallop भी हम सुन सकते हैं, S4 sound. And if there is a right bundle branch block, then we can इतना नहीं देख सकते तुम, फिर भी अगर सीधा है, अगर हार्ट
S1 S2 लब तब आवाज आता ना, तो अगर फेलियर वाला पेशेंट है उसमें कभी कभी तीसरा चौथा साउंड भी आता है. वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट द साउंड बट थेरोटिकल. ओके ठीक है आगे. इन्वेस्टिगेशन हाँ. TLC काउंट जो है वो 10 to नहीं कुछ 20,000. रह गया, आरबीबी का कुछ पहले से रह गया, इसके पहले कुछ रह गया क्या? इंस्पेक्शन में अदर सिम्टम्स भी रह गए हैं. आपने सिर्फ चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के बारे में ही बात की. काफी पेशेंट को नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, स्वेटिंग होता है. सब नॉर्मल और टेम्परेचर. चेस्ट पेन का एक फीचर अपन भूल गए डिस्क्राइब करते हुए. यूजुअली कार्डियक चेस्ट पेन जो रहता है ना, दैट विल नॉट रेडिएट अबव द एंगल ऑफ जॉ. एंगल ऑफ जॉ के ऊपर नहीं जाएगा यूजुअली, एंड इट विल नॉट रेडिएट बिलो द एम्बेलिकस. मतलब अगर कोई पेशंट अगर ऐसे बोल रहा है की इथून अर्ध डोकं इथून तर पूर्ण पाय दुखतो छाती पण दुखते, जनरली नॉट कार्डियक. मतलब अम्बिलिकस के ऊपर रहता है और एंगल ऑफ जॉ के नीचे रहता है. वैसे ही अदर सिम्टम कौन से कार्डियक सिम्टम विच आर द कार्डियक फीचर कौन कौन से? पाल्पिटेशन हो सकता है पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और सिंकोप के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं पेशेंट. ब्लैकआउट हो गया, सिंकोप के साथ प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट. और अदर सिम्टम्स लाइक एंजाइटी वगैरह तो है, लेकिन स्वेटिंग है, इपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, फिर पेशेंट प्रेजेंट विद नॉशिया वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स भी अकम्पनीड सिम्टम होते हैं. ठीक है. लिवाइन साइन क्या था? लिवाइन साइन few patient of MI और angina present with fist जो रहता है ना यहाँ पे रहता है, ऐसे आता है, ऐसे या ऐसे, उसको डिवाइन साइन बोलते हैं. यहाँ पे पेन सबसे ज्यादा होता है. ठीक, ये हो गए सिम्टम्स. उसके अंदर साइन में आपने लगभग सब कवर किया. ठीक है. आगे रिवर्स स्प्लिटिंग भी हो सकती है S2. ज्यादा बोले, जो समझता अपने को वही बोले. रिवर्स स्प्लिटिंग नहीं समझना है, अपने लेवल पे तो नहीं समझना है आपको. लिवर स्प्लिटिंग नहीं समझना है, गैलप रिदम, उसके बाद में आरबीबी भी रहा तो ये रहेगा. फिर अगर पेशेंट को एक्सटेंसिव एमआर रहा, माइट्रल रिगर्जिटेशन रहा, तो ये नॉर्मल सुनाई देगा. या थ्योरेटिकली यस यू शुड एक्सप्लेन इट, बट क्लिनिकल असेसमेंट के टाइम में वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी है जो जल्दी समझे और जिसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत ना पड़े इनिशियल फेज में. क्योंकि अपन इमरजेंसी टॉपिक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या करना है वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. बट इफ यू आर गुड इनफ तो फिर कर सकते हैं. ठीक है. Is there something difference between MI patient with DM, silent MI? Yes, he's right. How is it? Silent अगर पेशेंट, अगर ओल्ड एज पेशेंट अगर है, with hypertension and DM तो डायबिटिक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट अगर है, तो उनमें पेन यूजुअली बहुत कम रहता है. यू हैव टू गो फॉर अदर सिम्टम्स. जैसे अपन ये सारे सिम्टम डिस्कस किए ना, उन सिम्टम में से कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम रहता है, एंड ECG फाइंडिंग और मार्कर्स आते हैं. 20% cases are of silent MI. Old age में commonly silent MI. That's why अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन MI का पकड़े तो उसमें पेन प्रोमिनेंट इकलौता फीचर नहीं. तो डेफिनेशन इज लाइक कि रेज कार्डियक मार्कर्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम. रेज कार्डियक मार्कर म्हणजे की कार्डियक टिश्यूला आता डॅमेज झालाय, नेक्रोसिस झालाय, त्याच्यामुळे कार्डियक मार्कर वाढले. विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वन ऑफ द फॉलोइंग मध्ये एक फर्स्ट STT चेंजेस, ST एलिवेशन और STT चेंजेस. सेकंड ECG पे QA आएगा. थर्ड इकोवर तुमचं EF किंवा रिजनल वॉल ॲबनॉर्मॅलिटी राहील. फोर्थ सिम्टम्स, सॉरी फर्स्ट सिम्टम पकडायला पाहिजे. सिम्टम्स ECG वर STT चेंजेस, तिसरं ECG वर QA, चौथं इको मध्ये चेंजेस, रिजनल वॉल ॲबनॉर्मॅलिटी, या फिफ्थ वन एंजियोग्राफी पे एविडेंस ऑफ थ्रोम्बस. ये 5 में से कोई भी एक सिम्टम है और साथ में अकम्पनीड रेज कार्डियक मार्कर्स अगर है तो उसको MI बोलते हैं. सर ऊर्जा रेज कार्डियक मार्कर है तो उसको MI बोलते हैं. दॅट्स वाय फक्त चेस्ट पेन आहे म्हणजे MI आहे असं नाही, जसं दीपक सर सांगितलं. ठीक आहे. And is it correct the drop I or drop T should be done 6 hours? Yes, that will be discussed. We will discuss that thing in investigation. TLC count will be raised and main जो है cardiac markers. ECG. तो हाँ सबसे पहले ECG करते हैं.
Right. चेस्ट पेन है ECG करो। हाँ ECG में जो है तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप चेंजेस विल वेरी। अगर एंटीरियर वॉल MI है तो ST इलिवेशन जो है हमको V3 V4 में दिखेगा। इंफीरियर वॉल MI है तो सेकंड, थर्ड और AVF में दिखेगा। लेटरल वॉल MI में V5 V6 1 एंड AVF में दिखेगा। पोस्टीरियर वॉल MI में V7 V8 और V9 एंड सेप्टल वॉल MI अगर है तो ST elevation will be seen in V1 and V2 एंड रेसिप्रोकल चेंजेस जो है वो भी हम देख सकते हैं। अगर एंटीरियर वॉल MI है तो रेसिप्रोकल चेंजेस जो है वो सेकंड, थर्ड और AVF में दिखेगा। इंफीरियर लीड में रहेगा। हाँ, अगर एंटीरियर वॉल MI है तो इंफीरियर लीड में रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे। ओके। और इंफीरियर वॉल MI है तो फर्स्ट और AVF में चेंजेस दिखेंगे। पोस्टीरियर वॉल MI अगर है तो थर्ड में और AVF में। हाँ बराबर, थर्ड में AVF में। गुड। सेप्टल वॉल MI अगर है तो रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं दिखेंगे। और अगर राइट वेंट्रिकल की वजह से है तो AVR में चेंजेस दिखेंगे। और आर वेव जो है वो टॉल रहेगी V3 में एंड V4 में। व्हाट डज इट सिग्निफाइज? अगर AVR में ST एलिवेशन अगर है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? MI है लेकिन AVR में ST एलिवेशन है तो अच्छी बात है बुरी बात है? यूजुअली नहीं मिलता बट इट इंडिकेट्स राइट वेंट्रिकुलर इंफ्राक्ट और ग्लोबल कार्डियक इस्कीमिया व्हिच इज रियली बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। ठीक? यस। करीब 2 दिन पहले डिस्चार्ज। यस। ठीक। कार्डियक मार्कर्स फर्स्ट CPK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज it will appear। ECG में कुछ रह गया क्या? ECG का अपन ECG के टाइम में जो लेक्चर लिए थे उस टाइम में अच्छे खासे से डिस्कस किए थे, लेकिन जस्ट एक ST एलिवेशन कैसा होना चाहिए MI के लिए? ठीक है, अपन वो ECG के टाइम के लेक्चर के लिए ही ये रखेंगे। और एक बार लगा तो ECG रिपीट कर देंगे। ECG चेंजेस हो गए। आगे कार्डियक मार्कर्स CPK जो है वो 4 to 6 आवर में जो है तो के बाद रेस्ट होता है। नहीं, CPKMB इज अर्लीस्ट मार्कर। Earliest। अर्लीस्ट एक्चुअली मायोग्लोबिन है, लेकिन वो अपन मायोग्लोबिन गिनते 1 to 4 आवर 1 आवर के अंदर होता है। CPKMB व्हाट आई फील 1 से 1.5 घंटे में बढ़ता है, बढ़ना शुरू होता है, 4 to 6 आवर में पीक पे रहता है एंड 3 दिन में नॉर्मलाइज होता है। 48 to 78 आवर्स 3 दिन में नॉर्मलाइज होता है। यस यस। सो आइडियली CPKMB जल्दी रेज होता है, 1.5 से 2 घंटे में रेज होना शुरू हो जाता है। मायोग्लोबिन 1 घंटे में होता है। फिर भी एक बार कंफर्म करो सब, है ना? मतलब अर्लीस्ट CPKMB होता है। ओके नेक्स्ट। ड्रॉप आई जो है वो 6 आवर में जो है तो अराइज होते। दे रीच पीक एट 24 to 48 आवर एंड दे रिमेन इन ब्लड फॉर 5 to 10 डेज। ओके। तो 5 to 10 डेज में अगर MI का अटैक है तो ट्रॉप T और ट्रॉप I के लेवल हमको बड़े हमसे मिलेंगे। बड़ा हमसे इसलिए अगर आप diagnose सेकेंड कर MI नहीं डायग्नोस नहीं कर सकते। थोड़ा गलत हो, वापस बोलो बोलो क्या बोले, वापस बोलो। ट्रॉप T लेवल जो है 5 to 10 डेज तक बड़ा अगर बड़ा रेज है मतलब पेशेंट को MI का अटैक आया है। नहीं, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि CPKMB 2 से 3 दिन में नॉर्मलाइज होता था, लेकिन ट्रॉप T अगर बढ़ता है तो 5 से 10 दिन के लिए बढ़ा हुआ रहता है, 7 से 10 दिन पकड़ती है। तो इसका ये स्टेटमेंट का फायदा क्या है? अगर पेशेंट को दोबारा MI आता है 5वें दिन तो तुम कौन सा कार्डियक मार्कर देखेंगे? CPKMB। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रॉप T तो ऐसे बढ़ा हुआ है, प्रोपोनिन बढ़े हुए है ना, समझे? तो अगर रिपीटेड MI है विद इन 10 डेज तो तुम्हारे ट्रोपोनिन का यूज नहीं है, समझे? पक्का याद आया? और ट्रोपोनिन का ड्रॉबैक क्या है? और अगर पेशेंट इमरजेंसी प्रोसेस में जो है तो आफ्टर 6 आवर्स से होगा। ट्रॉप T ट्रॉप I बढ़ता है। जैसे कि हाँ, जैसे जैसे कि कार्डियक मायोपैथीज है Good। और पेरिकार्डाइटिस है, रीनल फेलियर है, मसल ठीक है, इंजरी है, good। क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। मसल इंजरी भी नहीं पड़ेगा। CPKMB और ट्रोपोनिन्स आर कार्डियक स्पेसिफिक मार्कर, तो हार्ट की इंजरी में ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कार्डियोमायोपैथी हो गया तुम्हारा, या फिर तुम्हारे CCF में हो गया, फेलियर में आ गया है, या फिर MI है, इन सब में कार्डियक मार्कर्स पड़ेंगे।
सीकेडी में क्यों बढ़ता है? अगर पेशेंट सीकेडी के है तो उसमें ट्रोपोनिन क्यों हायर साइड में रहते हैं? Because they are excreted by kidney. अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो ट्रोपोनिन यूजुअली हायर साइड में रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है. इसलिए आपण आता दोघं जण का पाठवतो याचे रिझन काय? विचार सर, ट्रोपोनिन आणि सीपीकेएम दोन्ही का पाठवतात? हो बरोबर. त्याचं रिझन असं आहे, युजली पेशंट आपल्याकडे 2-3 तास येतात, 3-4 तास येतात, तोपर्यंत ट्रोपोनिन वाढत नाही, तो तब तक ट्रोपोनिन नहीं बढ़ता, तब तक क्या बढ़ेगा तुम्हारा? सीपीकेएम नहीं बढ़ेगा. करेक्ट. दूसरा रीजन क्या है कि अगर पेशेंट को सीकेडी है, इमरजेंसी में आया है या फिर एक ही आया है, तुम्हारे पास इमरजेंसी में आया, तुमने सिर्फ ट्रोपाई भेजा, ट्रोपोनिन पॉजिटिव आया और सीपीकेएम भी निगेटिव आ गया, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबली सीकेडी है पेशंट को, इसलिए बड़ा हुआ है. असे काही कारण रिझन्स आहेत त्याच्यामुळे दोघं जण सोबत पडतात. एक तर अर्ली असलं तर अदर थियरी कि यूजुअली सीपीकेएमबी और बहुत लोग सीपीकेएमबी पे टोटली ये नहीं करते, रिलाई नहीं करते. तो वो क्या करते हैं कि इफ फर्स्ट ट्रोपाई इज नेगेटिव दे विल रिपीट ट्रोपाई आफ्टर 6 आवर्स. अगर पहला ट्रोपोनिन नेगेटिव है और 6 घंटे के बाद में ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है तो एमआय कंसिडर किया जातो. आणि ते एक पेशंट आपल्याकडे आलं होतं एमजे म्हणून, हाँ. ते नॉन कार्डियक होतं, एमआय नव्हतं, तरी पण तिकडे ट्रॉपटी केली होती, हा. लोडिंग डोस दिला होता, हा. जे सरांचे रिलेटिव्ह होते. तिकडे ट्रॉपटी केली होती, निगेटिव्ह होती, आपण इकडे ट्रॉप आय पाठवलं, सीपीके पाठवलं. हा, त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं होतं की लोडिंग डोस देऊन टाकला, बिकॉज त्यांनी हाय सस्पिशन्स ठेवलं होतं असं हा. की डाऊटफुल आहे, ईसीजीवर पण थोडे डाऊटफुल चेंजेस आहेत, तर त्यावेळेस मग त्यांनी लोडिंग डोस देऊन टाकला. द रिझन बेन दॅट बहुतेक 3-4 तासांनी वाढेल. हा बरोबर. ठीक आहे, ऍक्टिव्ह तो होतं. नव्हता ती वेगळी गोष्ट, पण हा बट ठीक आहे. सेफर साइड. Then radiological आपने imaging, पहले ईसीजी बोल दिया, कार्डियक मार्कर, और कोई कार्डियक मार्कर है क्या? LDH, ओके, और LDH भी 24 आवर्स में रिलीज होता और 5 to 7 डेज तक वो रेस्ट रहता. मतलब एलडीएच का कुछ फायदा है अपने को ज्यादा? नो. लेट भी आता है. कार्डियक मार्कर ऐसा होना चाहिए कि जो अर्ली राइज होना चाहिए, कार्डियक स्पेसिफिक होना चाहिए और जो जल्दी से डिक्लाइन भी होना चाहिए. ऐसा कोई मार्कर है? नहीं, कोई नहीं है, तो इसलिए अपन 2-3 साथ में करते हैं, 2 एक साथ. ठीक है, आगे. रेडियोन्यूक्लियर इमेजिंग, थैलियम स्टडी, डायरेक्ट तुमने कार्डियक मार्कर ईसीजी बोल दिया, अब 2D को कुछ बेसिक चीजें रहेंगी. 2D को भी जाएंगे, चलो ओके, 2D को भी देखिए. 2D को भी क्या क्या समझेगा? ऑल स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज जो है वो 2D को कुछ अकम्पनीड वल्वुलर डिसीज है क्या, रीजन वॉल एब्नॉर्मलिटी है क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है पेशेंट का, क्या लोकेशन ऑफ एमआई कहाँ पे है, ये सारी चीजें अपने को इको पे समझेंगे. ठीक है, और अब पहले आओ बेसिक चीजें, सीबीसी करेंगे. वाई? TLC टेस्ट है. सिर्फ टीएलसी के लिए? इज इट स्पेसिफिक मार्कर फॉर एमआई? नहीं, टीएलसी यूजुअली रिएक्शनरी रहता है. टीएलसी बढ़ना ही चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं, डिक्टम नहीं, पर जनरली बढ़े हुआ रहता है. ठीक है, और सीबीसी नहीं, ऐसा नहीं. सीबीसी में और क्या इम्पोर्टेंट? हीमोग्लोबिन. यस, अपन ने टाइप 2 जो देखा क्लासिफिकेशन में, उसमें कह रहे हैं सीवियर एनीमिया कैन प्रेसिपिटेट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट. तो एनीमिया है या नहीं देखना है. अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा है, अगर एचबी कम है, 7 से 6 से कम है, तो आपको एमआई के साथ में एनीमिया भी करेक्ट करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना है. तो इसलिए हीमोग्लोबिन भी इम्पोर्टेंट है. सीबीसी हो गया, और क्या इम्पोर्टेंट है? क्रिएटिनिन इम्पोर्टेंट है. यस, एचजीओटी. क्यों इम्पोर्टेंट है? केएफटी का इम्पोर्टेंस क्या है? क्रिएटिनिन का अगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट के रीनल कॉज हो सकते हैं. रीनल भी साथ में हो सकता है, और अकम्पनीड रीनल कॉजेस हो सकते हैं, और विच इज बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. और अगर पेशेंट को तुमको एंजियो को लेना है, और क्रिएट रेस्ट है तो नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, नहीं बोलना है उसको. अगर इमरजेंसी नहीं है तो आगे ढकेल नहीं करेगा, अगर इमरजेंसी है तो तुमको करना ही पड़ने वाला. बट फिर नेफ्रो का बैकअप सारी चीज़ें, या फिर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी नहीं होना, इसलिए उस दिन अपन ने देखे थे लो कॉन्ट्रास्ट, कम से कम कॉन्ट्रास्ट यूज करो, एनासिडिल लो, प्रॉपर हाइड्रेट करो पेशेंट को, ये सारे चीज़ें देखने की है. ये सारी चीज़ के लिए क्रिएटिनिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, आगे इलेक्ट्रोलाइट का कोई इम्पोर्टेंस है क्या? हाइपो. अगर हाइपरकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्पेसिफिकली पोटेशियम का अगर इश्यूज है, ऑलरेडी एमआई इटसेल्फ इज
प्रो अरिथमिजेनिक कंडीशन, उसमें अरिथमिया होते हैं, उसमें अपने को और कुछ ऐड और कोई फैक्टर नहीं चाहिए जो अरिथमिया कॉज करे, ठीक है। और कभी कभी एसटीडी चेंजेस जो है हाइपरकैलेमिया में आते हैं, ST elevation कभी-कभी दूसरे पार्टी वेव और एसटी एलिवेशन हाइपरकैलेमिया की वजह से भी होता है। अगर सब तुम्हारे मार्कर नेगेटिव आए, पेशेंट को सिम्टम नहीं रहे और पोटेशियम 6.5 रहा, तो एस्टिमेशन माइट बी ड्यू टू hyperkalemia. Definitely there is difference between ST elevation caused by MI and hyperkalemia. वो सारे अपन डिस्कशन ECG वाले लेक्चर में। अदर कॉजेस भी ST एलिवेशन के मायोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, ओके, ब्रूगाडा है, और एक हाइपरकैलेमिया भी होता है, कार्डियक ट्यूमर है, निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स में नहीं बोल सकते ST elevation, यूजुअली नहीं। हाँ, और ये जो बाकी पांचों बोले, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लॉक में भी ST elevation दिखता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होती है। नहीं, WPW में ST डिप्रेशन होता है। मतलब STT चेंजेस बोलेंगे तो एलिवेशन की कॉजेस में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में थोड़ा बहुत एलिवेशन रहता है, और यूबिपोलराइजेशन अगर पेशेंट को है तो उसमें भी ST एलिवेशन रहता है। ये सारे डिफरेंशिएट करने रहते हैं अपने को तुम्हारे MI से, ठीक है। अगर मल्टीपल लीड्स के अंदर सारे लीड्स में अगर ST एलिवेशन है तो पेरिकार्डाइटिस आता है। और अगर इन्वर्जन जो है टीरेट का इन्वर्जन मोर देन 2 mm है, मल्टीपल लीड्स के अंदर है, तो वो इंडिकेट करता है स्टेनोसिस ऑफ द लेफ्ट डिसेंडिंग ब्रांच। यस हाँ, एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस, उसको वेलियंस सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, देन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। हाँ लैब में कुछ रह गया और मार्कर देख लिए, इको देख लिया, आगे इको देखा, ECG देखा, मार्कर देखा, सीवीज देखा, क्रिएट देखा, क्रिएटिन देखा, इलेक्ट्रोलाइट देखा, आगे सिंगल ECG रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कभी-कभी MI इवॉल्व भी हो जाता है। और कभी-कभी पहले ECG में फाइंडिंग नहीं रहते, तो ECG बोलते हो कभी भी बोलना है सीरियल ECG मॉनिटरिंग करते हैं। अगर पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम है, ऐसे तुमको लग रहा है टिपिकल अंजाइना के या MI के सिम्टम है और पहला ECG नॉर्मल है, ऐसे पेशेंट में तुमने सीरियल ECG मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। तो ECG बोलते हैं सीरियल ECG मॉनिटरिंग बोलना है अगर चेंजेस नहीं है, ठीक है। और थैलियम स्टडी कर सकते हैं, थैलियम स्कैन कर सकते हैं, आगे परसेंटेज कितना है, स्पायरोफॉस्फेट स्टडी, हाँ, और सीज, एंजियोग्राफी। यस, ठीक है, विजुअल। चलो आगे, अब सीरोलॉजी मत बोलना है, एंजियोग्राफी करने के लिए सीरोलॉजी भी करना पड़ता है, ठीक है। आगे Then management. First, we have to give analgesics to control pain. So here we can give nitroglycerin, 0.5 mg की tablet we can give. सी दो चीज़ें हमेशा याद रखनी, हमेशा कोई भी चीज़ का, कोई भी डिसीज़ का या कोई भी इमरजेंसी का मैनेजमेंट करते हो, सबसे पहला अगर कोई है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सबसे पहला एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। दूसरा वाला दोज थिंग्स विच हैव सर्वाइवल बेनिफिट। तुम्हारा पेन कंट्रोल से सर्वाइवल बेनिफिट है क्या? तो फिर पहले तुम वो चीज़ें बोलो जिसकी वजह से सर्वाइवल बेनिफिट है। काय कैसे होता? Oxygen. सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया है और MI है तो ही ऑक्सीजन दो, अदरवाइज नहीं देंगे। व्हाई? अगर पेशेंट का सैचुरेशन 98 है और MI है तो O2 सप्लीमेंटेशन करेंगे क्या? क्यों? Now there are some theories which says कि if patient को hypoxia नहीं है और आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो prognosis will be मतलब if we compare between both the groups कि one who get supplementary oxygen despite of normal O2 and other group who get oxygen who doesn't get oxygen despite of with normal oxygen saturation, तो उसमें जिन लोगों को ऑक्सीजन दिया गया है उनका प्रोग्नोसिस खराब है। द रीजन बिहाइंड दैट इज MI का या फिर प्लाक फॉर्मेशन या प्लाक बड़ा होने का एक थ्योरी है कि रेडिकल इंजरी भी होता है, फ्री रेडिकल इंजरी, इसमें ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो अगर ज़रूरत है तो ही देने का, हाइपोक्सिया है तो ही O2 देने का MI में, वरना नहीं देने का। तो फिर दी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर एंटीप्लेटलेट्स।
एंटीप्लेटलेट्स में इकोस्प्रिन 300 mg, प्रोपिटैप 300 एंड एट्रोवा 40 80। लोडिंग डोज में हाँ, इकोस्प्रिन loading dose 300, प्रोपिटोग्रिल 300 एंड एटोस्टैटिन। डबल लोडिंग भी रहता है, 600 प्रोपिटोग्रिल भी देते हैं कभी। तो कब देते हैं तुम पढ़ के आओ, ठीक है। आगे The mechanism हाँ, of बोलो। action of icosprin is हाँ। icos हेलो सर, लेक्चर चल रहा है। हाँ, नहीं सर, आगे। हाँ, इकोस्प्रिन एंड क्लोपिटोग्रिल जो है वो एंटीप्लेटलेट्स ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करता साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को एंड देन इट decrease the prostaglandin and thromboxane A2 and increase the prostacyclin, due to which there is inhibition of aggregation of platelets, जिसकी वजह से थ्रोम्बस का एक्सटेंशन कम हो जाता। So we give first antiplatelets like icosprin and clopidogrel and आगे दोनों के third मैकेनिज्म एक्शन अलग अलग है। हाँ। इकोस्प्रिन का भी अलग है, क्लोपिडोग्रिल का भी अलग है, इसलिए दो देते हैं। दो थे। अगर दोनों के मैकेनिज्म सेम रहे तो एक ऑब्वियसली दोनों सही का काम करेंगे। तो इकोस्प्रिन का भी एंटीप्लेटलेट एक्शन अलग है यानी क्लोपिडोग्रिल का भी अलग है। और तीसरा और यूज कर देना था एट्रोवा नहीं, एंटीप्लेटलेट एग्रीग्लोब बोल के भी यूज करते हैं। उसमें क्या रहता, एग्रीग्लोब को इन्फ्यूजन लगाते ना, उसमें क्या रहता पढ़ते, ठीक है। एग्रीगेशन ये करता, एक प्लेटलेट इनएक्टिवेशन करता, एक प्लेटलेट इनएक्टिवेट करता, एक एग्रीगेशन प्रिवेंट करता, और तीसरा वाला दो प्लेटलेट का अटैचमेंट ये करता है। तीनों के अलग अलग मैकेनिज्म है, तीनों अलग अलग ग्रुप है। तो क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलर और प्रासोग्रिल ये तीनों आते हैं, ये तीनों के मैकेनिज्म एक ही है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म अलग है, तीनों का अलग है, एट्रिब्लोक का अलग है, ठीक है। तीनों के अलग अलग है, तीनों एंटीप्लेटलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम पहले मैडम ने बोला एस्पिरिन, हाँ एस्पिरिन यूज करना ही है सारे पेशेंट्स में। दूसरा ग्रुप आता है क्लोपिडोग्रिल का, प्रासोग्रिल का, जिसका मैकेनिज्म भी उन्होंने बोले क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल और टिकाग्रिलर। कौन सा यूज करने का? क्लोपिडोग्रिल इसके हाफ बोलो, पढ़े नहीं, कौन सा यूज करने का? यूजुअली अपन सभी प्रेफर करते हैं क्लोपिडोग्रिल का, कुछ लोग टिकाग्रिलर प्रेफर करते हैं, लोडिंग डोज टिकाग्रिलर का देने का, कुछ प्रासोग्रिल ये करते हैं। जनरली प्रासोग्रिल एंड टिकाग्रिलर दोनों भी क्लोपिडोग्रिल से बेहतर ड्रग्स माने जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि क्लोपिडोग्रिल जो है ना, मॉलिक्यूल जितना अपन लोड करेंगे ना, उसमें से 80% से ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं होता, नहीं गट में से एब्जॉर्ब ही नहीं रहता। जितना 15 to 20% एब्जॉर्ब होता वो लिवर में मेटाबोलाइज होता, एंड आफ्टर दैट उसका एक्शन स्टार्ट होता। मतलब क्लोपिडोग्रिल देने के बाद में उसका एक्शन स्टार्ट होने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। इफ वी थिंक अबाउट प्रासोग्रिल, तो प्रासोग्रिल या फिर टिकाग्रिलर, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो इनका मेटाबोलाइज एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहता है, मेटाबोलाइज भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जो एक्शन रहता है वो 1 से 3 घंटे के अंदर ही शुरू हो जाता है। और अदर थिंग इज जो इंडियन पॉपुलेशन है, स्पेसिफिकली डायबिटिक पॉपुलेशन, उसमें क्लोपिडोग्रिल का जो एफिकेसी है, जो काम करता है, वो वेरी करता है 20% से लेके तो 90% तक। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबिलिटी ऑफ एक्शन, कि शायद मेरे में वो 80% काम करे, बट तुम में शायद 30% ही काम करे। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से क्लोपिडोग्रिल के लिए काफ़ी डिबेट्स है, बट सेफेस्ट ड्रग इज क्लोपिडोग्रिल। सेफ भी है, उसका ब्लीडिंग रिस्क कम है, सारी चीज़ें कम है, इसलिए क्लोपिडोग्रिल शुड बी प्रेफर। दूसरा, अगर तुम प्रासोग्रिल से लोड करते हो पेशेंट को, और अगर पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिसीज आ गया और अब तुमको बाईपास करने का है, तो ऐसे टाइम में ड्यूरिंग सीवीजी, अर्जेंट सीवीजी अगर पेशेंट को लगता है, तो वो टाइम में प्रासोग्रिल अगर दे चुके हैं तुम ऑलरेडी, तो ऐसे पेशेंट में फिर सीवीजी के टाइम में ब्लीडिंग रिस्क वगैरह सब ज़्यादा रहती है। टिकाग्रिलर के साथ ऐसा नहीं है, तो बेटर टू लोड विथ इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल एंड स्टैटिन, और इकोस्प्रिन, टिकाग्रिलर और एंड स्टैटिन। तो इकोस्प्रिन वर्सेस टिकाग्रिलर
और अगर तुमको क्लियर समझ रही है सिंगल वेसल डिसीज ही है, पेशेंट डायबिटिक है और लोड करना है तो प्रासिक्यूरिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग है, बट अपन प्रेफर इन माय प्रैक्टिस आई प्रेफर टू लोड विथ क्लोपिडोग्राम, बट सबके बेनिफिट रिस्क फायदे नुकसान पता होना चाहिए। क्लोपिडोग्राम के हिसाब से प्रासोग्रिल और टिकाग्लोल दोनों का ब्लीडिंग रिस्क व आईसी ब्लीडिंग का जो ये रहता है रिस्क रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, एंड दे आर बोथ आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस आईसी ब्लीड अगर है उसको, दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, और प्रासोग्रिल के अगेन कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ थे, रिसेंट अपडेट हुआ तो पता नहीं, लेकिन अगर स्ट्रोक है, टीआई है, आईसी ब्लीड है तो उसमें भी प्रासोग्रिल नहीं देगा। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोपिडोग्राम। सो सेफेस्ट ड्रग, सेफेस्ट एंटीप्लेटलेट आफ्टर एस्पिरिन इज क्लोपिडोग्राम। तो क्लोपिडोग्राम देने का, क्योंकि बहुत बार आईसी ब्लीड का पेशेंट आप मिस कर दिया तुम नेक्स्ट डे, तुम प्रासोग्रिल दिए तो दैट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो अगर तुमने दिया एंटीप्लेटलेट दे दिया, स्टैटिन दे दिया, आगे मोना मोना याद रखे ना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स एंड एस्पिरिन ऐसे रखें, लेकिन वो पास्ट हिस्ट्री है, मतलब पास्ट थ्योरी है, पहले का थ्योरी है, उसमें से सिर्फ एस्पिरिन जो है उसको ही मॉर्टेलिटी बेनिफिट है, बाकी तीनों से कुछ मतलब पेशेंट बचेगा ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन पेन कंट्रोल से एंजाइटी भी अच्छा खासा होता है। मॉर्फिन कितने पेशेंट को दिया आपने आज तक? बुक में अच्छा है। और मॉर्फिन का कैसा है, मॉर्फिन के लिए काफ़ी सारे फार्मेसी में अवेलेबल करने के लिए काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन रहते, तो बहुत सारी फार्मेसी में अवेलेबल भी नहीं रहता। पेंटानिल हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो पेन कंट्रोल ट्रामेडोल से वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पेन है। एंजियोलैचिक भी यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी पेन कम करने के लिए। ठीक है, आगे एंटीप्लेटलेट दिया, स्टैटिन दिया, पेन कंट्रोल किया था। आगे should we use nitrate to reduce pain in all the patients with myocardial infarction? नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर अगर 100 से कम है तो नाइट्रेट्स नहीं देना। गुड। और अगर राइट वेंट्रिकुलर इंफीरियर वॉल एमआई है या फिर राइट वेंट्रिकुलर इंफ्रैक्शन है तो ऐसे में भी नाइट्रेट यूज नहीं करना। क्यों? वैसोडाइलेशन करता है तो फिर बीपी कम करता है। और आरवी इंफ्राक्ट जो रहता है, राइट वेंट्रिकुलर इंफ्राक्ट रहते हैं, वो दे आर प्रोन फॉर हाइपोटेंशन, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए प्रोन रहते हैं। ऐसे में अगर तुमने दिए तो तुम वो प्रेसिपिटेट करते हो। तो एनटीजी यूजुअली अनलेस एंड अंटिल एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, एंडरवॉल एमआई अगर रहा या फेलियर जैसे सिम्टम रहे तो ही देना, नहीं देना। राइट वेंट्रिकुलर इसमें इंफ्राक्ट में इंटरवॉल एमआई में अवॉइड करो। आगे थेरेपी थ्रोम्बोलाइसिस के लिए आए। थ्रोम्बोलाइसिस रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड प्रिवेंट द बैड इसके पहले कुछ रह गया? प्रोग्रेशन। इसके पहले कुछ तो भी रह गया? थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं फिर डायरेक्ट एंटीकोagulation बोलते हैं। हिपेरिन फ्लेक्सन। हां, हिपेरिन फ्लेक्सन। हाँ, कितना कैसे देने का? हिपेरिन यूज करना है, फ्लेक्सन यूज करने का, डोजेस कैसे कैसे है? हिपेरिन का अगर डोज तुमको पकड़ना है तो मुझे लगता है 50 या 60 यूनिट पर केजी से लोड कर देने का, और उसके बाद में अराउंड 12 to 15 यूनिट पर केजी पर आर के इन्फ्यूजन से देने का। इन्फ्यूजन आर ऑलवेज बेस्ट, या फिर 4 to 5,000 QID में यूनिट को 4 टाइम्स से देने का। दूसरा है क्लेक्सन विच इज कंपेरेटिवली बेटर हिपेरिन, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन। वो उसका डोजेस कैसे है? 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी डोज में 2 बार, मतलब अगर 60 केजी का है तो 60 मिलीग्राम बीडी देने का, वो 0.6 में आता है, 0.6 ml। ठीक है, तो बीडी देने का। अगर पेशेंट सीकेडी का है तो प्रेफरेबली हिपेरिन यूज करो, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन यूज मत करो, और अगर यूज करना है तो फिर ओडी डोजेस करें। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंटीकोagulation, इसमें भी बेनिफिट्स है। ठीक है, और अगला अभी थ्रोम्बोलाइसिस की तरफ चलो। थ्रोम्बोलाइसिस अगर आइडियल ट्रीटमेंट बोलना है, अपने सेटअप में बोलना है, अपने पास कैथ लैब भी है, आइडियली पेशेंट को लोडिंग डोज देके हिपेरिन देके एंजियोग्राफी के लिए भेज देते अगर स्टिमुलेशन एमआई है। और अगर एंजियो के लिए अफोर्डेबिलिटी इशू है, कैथ लैब अवेलेबल जहाँ नहीं है, दे विल गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। बोलो थ्रोम्बोलाइसिस का। थ्रोम्बोलाइसिस जो है वो यूजफुल रहता है विदिन 3 to 6 आवर, और 3 to नहीं, विदिन 6 आवर, हाँ 4 to 6 आवर बोलते हैं, विदिन 4 to 6 आवर
इफेक्टिव रहता है। ओके, तो कैसे करने का थ्रोम्बोलाइसिस? थ्रोम्बोलाइसिस जब एस की एलिवेशन रहता तभी करना है, और अगर पेशेंट की एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो हमको उनको थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। देयर आर सो मेनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी such as bleeding, diathesis, uncontrolled hypertension. If BP is above 180 and 110, then we should avoid the thrombolysis. Recent अगर सर्जरी हुई है पेशेंट की, रिसेंट इंजुरी है, ओल्ड CVA है, प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है पेशेंट को, और अगर डायबिटिक रेटाइनोपैथी, GI ब्लीडिंग, अगर पेशेंट ओरल एंटीकोएगुलेंट की थेरेपी पे है तो हमको ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। और इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, और प्रायर एलर्जिक रिएक्शन है, और अगर पेशेंट ने थ्रोम्बोलाइसिस किया है विदिन 2 इयर्स तो हम फिर से थ्रोम्बोलाइसिस नहीं अवॉइड करना है थ्रोम्बोलाइसिस। और अगर सस्पेक्टेड डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म है तो भी हम ऐसे पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते। वी शुड अवॉइड थ्रोम्बोलाइसिस इन दिस पेशेंट। तो थ्रोम्बोलाइसिस चेकलिस्ट रहती है, थ्रोम्बोलाइसिस के पहले हिस्ट्री लेते हो, ये सब चीजें 15 फैक्टर्स ये कंफर्म करने का कि इसमें से पेशेंट को कुछ नहीं है। ठीक, आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो रहता थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का, वो ये रहता कि वो प्लाज्मिनोजन पे एक्ट करते और फिर प्लाज्मिन रिलीज होता, फिर फाइब्रिन, तो उसकी वजह से उनका फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट रहता, जिसकी वजह से जो है लाइसिस में वो हेल्प करता, थ्रोम्बस के लाइसिस में हेल्प करता। फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो 2.5 लाख, 7.5 लाख टू 15 लाख में रहता, इंटरनेशनल यूनिट में रहता पर एमएल। तो we should start with 7.5 lakh unit over 20 minutes and then followed by 7.5 lakh unit over another 40 minutes. Okay. So ideally काफी लोग 3 hours 30 minutes बोलते हैं, कुछ लोग 1.5 hour बोलते हैं, कुछ लोग 45 मिनट बोलते हैं। आइडियली 45 to 1 hour तक थ्रोम्बोलाइसिस होना चाहिए। एसटी केस है 1.5 मिलियन यूनिट देने का रहता और 45 मिनट्स। Then anistripase, anistripase जो है ये कॉन्जुगेट है, अल्टीप्लेस अल्टीप्लेस भी है, और एक anistripase रहता जो कॉन्जुगेट रहता स्ट्रेप्टोकाइनेस का, जो 30 यूनिट इंफ्यूज करते हैं 2 to 5 मिनट में, वो कॉन्जुगेट रहता स्ट्रेप्टोकाइनेस का। देन अल्टीप्लेस जो है वो रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, इसमें हाइयर रेट ऑफ रीअक्लूजन हो सकता, इसलिए इसको जो है तो हिपैरिन के पेरिपेसु यूज करते। मतलब जब अगर आप अल्टीप्लेस से थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको हिपैरिन साइड बाय साइड यूज करना है। 100 mg स्टैट देते, फिर उसके बाद 50 mg IV बोलस, देन 50 mg इंफ्यूज करते फॉर नेक्स्ट 30 मिनट, देन 35 mg IV देते फॉर नेक्स्ट 1 आवर, और साथ साथ जो है तो हिपैरिन भी देते। हिपैरिन जो है वो 500 यूनिट बोलस, उसके बाद 1000 यूनिट देते जब तक पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो कंट्रोल टाइम के 1.5 मिनट्स नहीं हो जाता, 1.5 टाइम नहीं हो जाता। तो साइड बाय साइड हमको हिपैरिन यूज करना है अगर हम अल्टीप्लेस यूज कर रहे हैं तो। सेम है रेल्टीप्लेस, जिसमें 20 यूनिट IV हम स्टार्ट करके 10 यूनिट बोलस देते फॉर 2 मिनट्स, देन हाफ एन आवर के लिए हम 10 यूनिट IV देते, और हिपैरिन जैसे अल्टीप्लेस के साथ यूज करें 500 इंटरनेशनल यूनिट बोलस, देन 1000 यूनिट QID अकॉर्डिंग टू प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जब तक प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है सुन लो, बाद में याद करने का। और सबसे पहले सब याद रखने का, जो 2 चीजें अपन कॉमनली यूज करते हैं, जो 2 थ्रोम्बोलाइसिस के लिए यूज करते हैं, वही 2 ही याद रखने की। मैडम 5-6 के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, 4 या 5 के बारे में, लेकिन जो 2 तुम कॉमनली यूज करते हैं उन्हीं 2 को याद रखने का, क्योंकि सब याद नहीं रहता। हाँ, और एक बच गया टेनेक्टिप्लेस जो है तो 40 mg देते, सिंगल बोलस देते। ये जेनेटिकली Actually, म्यूटेंट है। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट। टेनेक्टिप्लेस उसके साथ चार्ट आता कि इतना वेट रहा तो इतना लेने का, इतना रहा तो इतना लेने का। ठीक, we should have to manage after thrombolysis। पेशेंट को आपको तुमने थ्रोम्बोलाइसिस डोजेज बोलती है
मैकेनिज्म बोलती है। अब वापस आओ थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस करने से पहले क्या क्या करने का? एक तो तुमने थ्रोम्बोलाइसिस चेकलिस्ट बना लिया, उसमें से हिस्ट्री से पूछते हैं ये कुछ है क्या, ऐसे ऐसे कुछ है क्या। दूसरा क्या है चीज, प्री रिक्विजिशन क्या क्या है थ्रोम्बोलाइसिस की। अब अपन क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस क्या करना है, और थ्रोम्बोलाइसिस के बाद में क्या करना है। अगर तुमको अभी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस के लिए लेना है, तुम क्या क्या करेंगे पहले? पहले उसके वाइटल्स देखिए बीपी आ गया, सब हो गया सब तो 180 के ऊपर नहीं है, 150 या 90 बीपी है तुम्हारा पेशेंट का, पल्स 110 पर मिनट है, रेस्पिरेटरी रेट 20 पर मिनट है, सैचुरेशन भी 96 है। आगे फेलियर के भी साइन नहीं। आगे कभी भी थ्रोम्बोलाइसिस लगाते हो, हाँ वो तैयारी करके रखेंगे, वो शॉप में जाएंगे तो नॉर्मल बना के रखिए, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होता है, एंटीजी इन्फ्यूजन बना के रखें। आगे ये सब रखें। हाँ ECG निकाल एलर्जी हुआ तो फिर हाइड्रोकॉर्ड और एडी भी साथ में रखें। और आगे फ्लूइड भी साथ में रखें। आगे पेशेंट को 2 आईवी कैनूल लगाने के, 2 सेंट्रल लाइन तो बहुत ही अच्छी बात है, सेंट्रल लाइन तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर सेंट्रल लाइन अवेलेबल नहीं है तो 2 साइड में 2 लार्ज बॉल कैनोला लगाने की। एक थ्रोम्बोलाइसिस जिधर से चल रहा है उधर से थ्रोम्बोलाइसिस ही चलना चाहिए, बाकी ड्रग्स देने के लिए दूसरा आईवी कैनोला लगाना है। क्यों? ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस फिर वो शॉक देता है, फिर तुम प्रिक लेने को भागते हैं, जहाँ पे प्रिक लेते वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, नहीं करने का, दोनों साइड में एक। दूसरी चीज़ पुलिस कैथेटर पहले ही करो, पेशेंट को पुलिस कैथेटराइजेशन ऑलरेडी पहले ही करके रखना है, ठीक है। 2 तीसरा इमरजेंसी इंट्यूबेशन कंट्रोलिंग, इमरजेंसी ड्रग पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसमें तुम्हारा बीटा ब्लॉकर, कॉड्रॉन, ये सारी चीज़ें, लिग्नोकेन, कॉड्रॉन, इंट्यूबेशन ट्रॉली, ये सब कुछ तुम्हारे साइड में होना चाहिए। देन शुगर गिन लेना है, पहले शुगर गिन लेना है ना, शुगर भी साथ में गिन लो। उसके बाद में आगे फ्लूइड रखो, एनटीजी रखो, आइनोट्रोपिक सपोर्ट भी साथ में रखो, और अगर एलर्जी होता है तो एलर्जी के लिए हाइड्रोकॉर्ड भी साथ में रखो। आगे दीज आर प्री रिक्विजिशन फॉर थ्रोम्बोलाइसिस, मतलब पेशेंट को 2 आईवी कैनोला होना चाहिए या फिर सेंट्रल लाइन होनी चाहिए। हाँ, और कंसेंट मतलब तुमने जब चेकलिस्ट कर लिया तब कंसेंट कर लिया। चेकलिस्ट मतलब पेशेंट के काउंसलिंग में ये है क्या, कंसेंट लेने का, थ्रोम्बोलाइसिस के साइड इफेक्ट जो है, रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करने का, उसके साथ में कंसेंट लेने, ठीक है, ये करा। और आगे फिर अभी थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम थ्रोम्बोलाइसिस स्टार्ट करें, ठीक है। अब ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस क्या क्या करना, जो करते हो बोलो। ईसीजी मॉनिटरिंग वैसे आपका ECG निकालना बराबर। कभी वॉल्ट भी हो जाता है। हाँ, शुरुआत में ईसीजी रखना है, ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस एक करना है, थ्रोम्बोलाइसिस होने के बाद में करना है, आधे घंटे के बाद में करना है। ये किस लिए, रिवर्सल हुआ है या इवॉल्व हुआ है, बिल्कुल ये चेंज नहीं होना देखने के लिए। एक दूसरा वाला, अगर कॉमनली अफोर्डेबिलिटी और बाकी चीज़ों के लिए अपन एसटी के यूज़ करते हैं। एसटी के में जनरली मैक्सिमम पेशेंट को हाइपोटेंशन होता ही है, इसलिए तुमने हर 5-5 मिनट को वाइटल मॉनिटरिंग रखना है, बीपी पल्स सैचुरेशन गिनते रहना। जैसे बीपी कम हो रहा है आपको फ्लूइड बोलस देने का है, और थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब अपना एसटी के थोड़ा स्लो कर देना है। अगर 90 से नीचे बीपी 100 से नीचे है तो बंद करो थोड़ी देर के लिए, फिर बीपी नॉर्मल लगा, फ्लूइड दो, बीपी आया, फिर वापस थ्रोम्बोलाइसिस शुरू करो, राइट। ये हो गया, वाइटल चेक करते रहना है 5-5 मिनट को, ईसीजी मॉनिटरिंग करते रहना है, और मॉनिटर लगा के रखा है तुमने, डीफेब साथ में लगा के रखा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखना है ईसीजी डॉक्यूमेंटेशन के लिए 3-4 निकालेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग करते रहोगे। क्यों? क्योंकि रिपरफ्यूजन एरिथमियास कॉमन रहते हैं, रिपरफ्यूजन के साथ में कभी कभी सस्टेन्ड वीटी या सस्टेन्ड वीएफ भी आ जाता है, तो ऐसे टाइम में तुमको उसके हिसाब से यूजुअली कॉर्डरॉन या शॉक, अगर शॉक है विथ वीएफ है या वीटी है तो तुमको शॉक करना है, नहीं तो फिर ड्रग थेरेपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग रखना है, ठीक है। रिपरफ्यूजन एरिथमिया के लिए कुछ नहीं करना है, अगर 2-3 इल सस्टेन्ड आ रहा है, मतलब 2-3 आए वीटी के चला गया,
फिर 2-4 आए, फिर इक्टोपिक आए, तो उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर सस्टेन रह रहा है, शॉक रह रहा है, तो फिर उसको ट्रीट करना है। ठीक है, ये देखिए। और क्या करना है ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस? कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है वो देखना है, पेशेंट का सेंसोरियम चेक करते रहने का है। बीपी कंटिन्यूस 160 170 के मतलब नॉर्मल रेंज में रहा तो वेल एंड गुड, पर 160-70 के ऊपर नहीं जाने का। नेक्स्ट रिएक्शन हुआ तो अकॉर्डिंगली काफ़ी लोग एसटी के शुरू करने के पहले हाइड्रोकॉर्ड और एविल दे देते, नॉट बैड, दे सकते। ये हो गया ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस। अब थ्रोम्बोलाइसिस हो गया आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस एस्पिरिन और एक कंटिन्यूस पेशेंट के सिम्टम पे ध्यान देने का, चेस्ट पेन कितना कम हो रहा है। अगर एट द एंड ऑफ या ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस या एंड ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस अगर चेस्ट पेन कम होता है, दैट इज गुड साइन। कभी-कभी ईसीजी के चेंजेस नहीं जाते थ्रोम्बोलाइसिस के बाद में इमीडिएटली, लेकिन चेस्ट पेन ऑलमोस्ट 60-70% से रिलीव होता है। ऐसे पेशेंट को तुम आधे एक घंटे के लिए और वेट कर सकते हो। ठीक है, और अब थ्रोम्बोलाइसिस खत्म हो गया, आगे एस्पिरिन और हिपेरिन कंटिन्यू रखना है पेशेंट को। दो थ्रोम्बोलाइसिस के बाद भी, बेसिक okay. स्टीबिन पर केजी बोलस हिपेरिन कंटिन्यू रखना है, और देन 12 यूनिट पर केजी पर मिनट के हिसाब से पर आवर के हिसाब से जो है हिपेरिन कंटिन्यू रखना है जब तक कि पीपीटी जो है तो 50 to 75 सेकेंड नहीं हो जाता। पेयर नहीं तब रखना है तक- इसको। हाँ, एपीटीटी तब तक एपीटीटी पीटीटी एपीटी एक- एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप। ठीक है, जब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है 50 to 75 सेकेंड नहीं हो जाता। अगर तुम हिपेरिन यूज कर रहे हो, अगर तुम लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन यूज कर रहे हो तो एपीटीटी बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, और 20% केसेस में रीऑक्लूजन हो सकता है, तो ऐसे केसेस में रीथ्रोम्बोलाइसिस कर सकते, बट मोस्ट कॉमनली वी शुड गो फॉर पीटीसी। गुड। तुमने एंटीप्लेटलेट दिए, स्टैटिन दे दिए, स्टेबलाइज किए, पेन कंट्रोल करे, एंजियोलाइटिक दिए, उसके बाद में थ्रोम्बोलाइसिस भी कर लिए, खुद तुम्हारे पास एंजियो नहीं था। अब आगे और क्या बाकी है? और कौन कौन से ड्रग्स है जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी बेनिफिट है? वो एंटी एंजाइनल है। कौन कौन से ड्रग है जिसके मॉर्टेलिटी बेनिफिट है? मतलब पेशेंट की लाइफ कुछ मॉर्टेलिटी बेनिफिट मतलब क्या कि ये दवाई देने से शायद उसकी बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। ऐसे कौन कौन से ड्रग है? इसी इनहिबिटर है आपका, एआरबी है, लिखा ना तुमने? हाँ, इसी इनहिबिटर है, एआरबी है, बीटा ब्लॉकर्स है, नाइट्रेट्स की वजह से नहीं है, रिस्क बेनिफिट नहीं। वो थ्योरेटिकली बोलते कि विजुअलाइजेशन होता, परफ्यूजन बढ़ता, चेस्ट पेन कम होता, लेकिन मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। और स्पाइरल लैप्रोड और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वीरापैमिल और मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है शायद, फिर भी यूज करते हैं। हाँ, इतने सारे ड्रग्स, तो इसमें से एक या दो ग्रुप के ड्रग ऐड करते हैं। इसमें से मेटोप्रोलोल 50 mg आईवी लेना है एवरी 2 days फॉर 3 doses, और 50 mg ओवर 6 आवर देना है फॉर द पीरियड ऑफ 48 तो आवर। बीटा ब्लॉकर तुमने स्टार्ट कर दिया। व्हेन नॉट टू यूज बीटा ब्लॉकर? ब्रैडीकार्डिया। अगर पेशेंट को एमआई है, ब्रैडीकार्डिया है, तो आपको बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करनी। किसी यूज करने हैं, उसके फायदे पता है अपने को, मॉर्टेलिटी बेनिफिट है, थोड़ा एंजाइना चेस्ट पेन भी कंट्रोल रहता है, मॉर्टेलिटी बेनिफिट भी है सारे। कब नहीं देना ये भी पता होना चाहिए, कब कब नहीं देने का। अगर पेशेंट फेलियर में है, सीसीएफ में है, तो बीटा ब्लॉकर अवॉइड करना है, ब्रैडीकार्डिया है तो अवॉइड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट बीटा बोला आपने, और कौन कौन से कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो हम यूज कर सकते हैं? इसको नाम कर सकते हैं, और बिसोप्रोल बीटा ब्लॉकर अच्छे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हो गए। आगे आगे आप दूसरा ग्रुप एसी इनहिबिटर एआरबीज, इसमें रैनिप्रिल यूज करते हैं 2.5 to 20 mg 1.25 से लेके 20 mg तक यूज करते हैं। ओके, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट का कम है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, तो हम एसी इनहिबिटर्स जो है वो प्रिफर कर सकते यस हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर। और अगर रिकरेंट हिस्टीरिया है, अनरिस्पॉन्सिव टू बीटा ब्लॉकर है, एसोसिएटेड विद एसटीएन है, देन वी शुड गो फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिल्टीएसएम 240 to 360 mg जो है डेली यूज कर सकते हैं। कर सकते, ओके।
गिल्टीएजिन, लिरापेनिन जो कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो हम यूज़ कर सकते बिल्कुल कर सकते बराबर। उसके बाद में आप एंटी एंजाइनल पे आओ। हैं। नाइट्रेट्स, और देखो नाइट्रेट्स आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं, हालांकि देर चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ते भी है मेडिकेशन और सबसे ज़्यादा स्टडीज भी हुए, लेकिन नाइट्रेट्स की वजह से हेडेक मतलब चेस्ट पेन का हो जाता है, हेडेक होता है, ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए यूज़ नहीं करते। तो नाइट्रेट्स भी यूज़ करते हैं। हाँ इसमें नाइट्रेट अच्छा अच्छा त्यानंतर तुमचं निकोरेटिन यूज करतो आपण, त्याच्यानंतर और कौन से यूज कर सकते, 3-4 ग्रुप के एंटी एंजाइनल है। कौन कौन से, एक नाइट्रेट है एक, उसके बाद में दूसरे निकोरेटिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद में फॉस्फोडाइएस्टर, इसको निकोरेटिन यूज कर करके बाकी सब भूल गए। देखो एंटी एंजाइनल के ग्रुप में कौन कौन से लिखे आपने, ऍडमिशन सर ये जाऊन नाही झालं तुम्ही काय सिव्हिअर ॲनिमिया आहे हा. 5.6 HB आहे हा. बायोलॅटरल पेडल इडिमा आहे हा. आणि ब्रेथलेस म्हणत होते पण सॅच्युरेशन ओके आहे स्टार्ट चालू है क्या नहीं है, देख लो एक बार। ठीक है, तो एंटी एंजाइनल में कौन कौन से आते हैं, एक तो अपन ने डिस्कस किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करे, बीटा ब्लॉकर करे, नाइट्रेट्स करे, उसके बाद में पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरेटिन है, उसके बाद में डाइपायरिडोल है, ट्राइमेटाजिडिन भी है, ये सारे एंटी एंजाइनल ड्रग हैं। आगे कॉम्प्लिकेशन, नहीं कुछ बाकी रह गया, रोल ऑफ डायरेटिक्स, यस, अगर फेलियर में है पेशेंट, सीसीएफ में है तो डायरेटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सब कौन से है, कौन से सेटअप में है, ये सब जिसके पास कैथलैब नहीं है। आइडियली लोडिंग डोज देके कैथलैब शिफ्ट करो पेशेंट, अगर कैथलैब नहीं है तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब थ्रोम्बोलाइसिस हो चुका है तुम्हारा, तुमने एड ऑन ड्रग भी ऐड कर चुके हैं, सब अच्छे से चल रहा है। नाउ अगले 24 घंटे में क्या ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारा थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेसफुल है या नहीं। अगर पेशेंट को ऑनगोइंग चेस्ट पेन है या ईसीजी चेंजेस रिवर्ट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को अर्जेंट एंजियोग्राफी के लिए भेजने का है, पीटीसीए का है। So the treatment is to go for PTCA, otherwise ये सब चलेगा। ठीक है, अब what are the रिस्क, क्या बोलते हैं, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। अगर अब तुम आए पेशेंट तुम्हारे पास एमआई का है तो तुम्हारे पास पेशेंट आया, फिर रिलेटिव पूछते ना सर तबियत कैसी है, पुढं कसं राहील, ऑब्वियसली बैड प्रोग्नोसिस से एक्सप्लेन करते हैं अपन कि ये ऐसा ऐसा है सब कुछ, लेकिन एक्चुअल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, कुछ कोडिंग वगैरह है उसके लिए। एमआई का पेशेंट अगले 6 महीने में 3 महीने में बचने के चांसेस कितने हैं, लाइफ को कितना रिस्क रहेगा, 1 साल में कितना रिस्क रहेगा, इसको चाहिए क्या। स्कोरिंग सिस्टम्स है उसके लिए, टीमी स्कोर है, ग्रे स्कोर है। टीमी स्कोर के कुछ ड्रॉबैक्स है, ग्रे स्कोर प्रॉपरली यूज करते हैं, इसमें पेशेंट का एज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, क्रिएटिनिन, कार्डियक अरेस्ट हुआ था के पेशेंट को, और अदर फैक्टर डिस्कस करते हैं। नेट पे है अवेलेबल, उसमें सिर्फ आपको नेट पे जाने का, ग्रे स्कोरिंग का ऐप डाउनलोड करने का या डायरी भी अवेलेबल है, उसमें पेशेंट का डेटा फिलअप करने का है। उसके हिसाब से आपको 6 मंथ सर्वाइवल, 1 ईयर सर्वाइवल, 3 ईयर सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट मिलेंगे। ठीक है, मतलब उसमें शॉक है, ये सारी बैड मतलब जो रिस्क है, ये सारी चीज़ें कंक्लूड करता है। एज, एस्टिलेशन कितना था, कार्डियक अरेस्ट हुआ था क्या पेशेंट को, हाइपोटेंशन था क्या, पेशेंट का हार्ट रेट कितना था, क्रिएटिनिन कितना था, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, उसके हिसाब से स्कोर निकलता। उस पे से रिस्क आता, मॉर्टेलिटी कितना रहेगा 6 महीने, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, उसमें परसेंटेज देता हूँ कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, ये डेटा है तो 13% रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी रहेगा, ये रहा तो 40% रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन काउंसिल पेशेंट, रिलेटिव को काउंसिल कर सकते कि आपका पेशेंट के चांसेस है। ग्रे स्कोरिंग लिख लो, ठीक है, आदत ही लगा आप जिसे एमआई का पेशेंट आए तो ग्रे स्कोर कैलकुलेट करके ही रखने हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी तुमने ये कर ली, अब तुम्हारा थ्रोम्बोलाइसिस कर लिया, फिर तुमने एंजियोप्लास्टी कर लिया पेशेंट का, अब तुमने ऑब्जर्वेशन के लिए क्या रखा। अब वो पीसीआई के आदमी, परक्यूटेनस इंटरवेंशन के आदमी क्या क्या करते हैं,
लोकल साइड देखने का है, हेमाटोमा देखना, वो अपन कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे देखेंगे, इंटरवेंशन के टाइम में देखेंगे। अभी डिस्कस ये करना है, अब तुम्हारे पेशेंट का तुमने लाइस करा लिया या प्लास्टिक करा लिया, ठीक है, आगे क्या? तुमने ड्रग के ऐड कर दिए, सब रिमॉडलिंग प्रिवेंट करने वाले बीटा ब्लॉकर एसी इनहिबिटर ऐड किया दोनों में से, सारा चीज़ अच्छे से मैनेज कर लिया। अब पेशेंट तुम्हारा 3-4 दिन के बाद में घर पे जाने वाला है। अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? समझ लो प्लास्टिक हो चुका है पेशेंट का, तुमने थ्रोम्बोलाइसिस कर लिया, थ्रोम्बोलाइसिस फेल है तुम्हारा, तुमने दूसरे दिन प्लास्टिक भी किए, अब प्लास्टिक किए, प्लास्टिक के बाद पेशेंट घर पे जा रहा है। 5 दिन के बाद में तुमने डिस्चार्ज मेडिकेशन लिखा के लिए सब, और पेशेंट घर पे जा रहा है। पेशेंट को क्या क्या एक्सप्लेन करना है और आगे क्या क्या मॉनिटरिंग है, पेशेंट को फॉलोअप के लिए कब बनाना है, पेशेंट के डाउट कैसे है, जैसे कि अभी एक्सरसाइज कब से शुरू करने की है, रूटीन एक्टिविटी कब शुरू करने की है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी कब से शुरू करने की है, या फिर हेवी एक्सरसाइज कब शुरू करना है, फॉलोअप कब करना है, कौन से इन्वेस्टिगेशंस कब रिपीट करने के हैं, कौन से करने के, इसके बारे में कभी कुछ डिस्कशन किया कि कुछ सोचा, या डिस्चार्ज मेडिकेशन लिख के भेज दिया? आगे क्या? पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे ठीक से, वापस, हाँ। तो पेशेंट को फॉलोअप करना है। जल्दी आ जाओ। ओके। रेडिएशन अवॉइड करना बोलेंगे। हाँ, कब तक अवॉइड? डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, अगर इमरजेंसी है तो फिर सी, पेशेंट को पहले तुमको रिस्क में डिवाइड करना है, हाई रिस्क ग्रुप में, लो रिस्क। अगर पेशेंट तुम्हारा हाई रिस्क में आ रहा है, स्कोरिंग सिस्टम से निकाले तुमने, हाई रिस्क में आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को एक्सर्शन अवॉइड, मेडिकेशन तो रेगुलर लेने बोलना ही है, एक्सर्शन कम रखने बोलना है। आफ्टर 6 वीक उसका टीएमटी, इको या थैलियम स्कैन करा लेंगे, तो मायोकार्डियम का स्टेटस कैसा है, कराना ही करना है। नॉर्मल पेशेंट में भी टीएमटी या एक्सरसाइज टॉलरेंस कराना ही 6 हफ्ते के बाद में, लेकिन इनमें कराना है। अब ये किसके लिए? अगर असिम्टोमेटिक पेशेंट है तो, इफ पेशेंट इज असिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक पेशेंट का हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसको 6 हफ्ते के बाद में टेस्ट कराने की, टीएमटी कराना है, ईको कराना है, और अवेलेबल है तो परफ्यूजन स्कैन भी कराना है। उसके अकॉर्डिंग आगे का मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। आगे का मैनेजमेंट सबका अपन साथ में डिस्कस करते हैं ना। दूसरा, अगर लो रिस्क रहा और तो उसको क्या करना है, उसको भी 6 हफ्ते के अंदर टेस्ट कराना प्रेफर करो। लेकिन बीच बीच में क्या है, अभी उसके रूटीन एक्टिविटी 1 हफ्ते तक उसको हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करने बोलना, 1 से 2 हफ्ते के बीच में उसको रूटीन एक्टिविटीज जो घर के है वो करने को बोलना है। 2 हफ्ते के अपने सेक्सुअल लाइफ ये कर सकता, स्टार्ट कर सकता। 2 से 4 हफ्ते तक एक्सरसाइज टॉलरेंस नॉर्मल तक लाने की कोशिश करने की, मतलब जितना तुम्हारा नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकता, पहले कैसा था तुम्हारा, मतलब नहीं 3-4 किलोमीटर चलता था पहले, तो 3 से 4 हफ्ते तक दम से स्लोली बढ़ाने बोलने का, जितना टॉलरेट होता है और पीक तक पहुंचने का बोलने का। 6 हफ्ते के बाद में असेसमेंट करने का। इन केस ये किसके लिए है? ये असिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो वापस कार्डियक वर्कअप करने का, लगा कि अंजाइना है, इसी चेंजेस है, तो वापस सीधी करने का। प्लास्टिक अगर ब्लॉक है या स्टेन थ्रोम्बोसिस है, कुछ है, तो फिर परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करके, मतलब एंजियोप्लास्टी करना है। अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो, असिम्टोमेटिक है तो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में क्या करने का, चौथे हफ्ते तक क्या करने का, छठे हफ्ते तक क्या करने का, वो बोला। छठे हफ्ते के बाद में असेसमेंट करने का। अब अगर 6 वीक के बाद में तुमको मिला कि पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकुलर ये डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है पेशेंट, अगर एलवी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, और तुमने इसी इनहिबिटर अब तक ऐड नहीं करे तो आप ऐड कर दो। अगर तुमको लग रहा है कि टीएमटी पॉजिटिव है तो एनजीओ वापस करके देखो और अकॉर्डिंगली डिसीजन। बाकी तो कुछ खास नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने को बोलना है कि कॉन्स्टिपेशन होने पर यूजुअली पेशेंट फेलियर में जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, मेडिकेशन टाइम पे लेना है। खास करके अगर तुमने पेशेंट को टीका ग्लूटान पे रखा है, आजकल काफ़ी लोग पोस्ट प्लास्टिक भी देते हैं, तो उसके बेनिफिट भी है। एंटीप्लेटलेट में एस्पिरिन रखते, टीका ग्लूटान पे रखते। टीका ग्लूटान का एक सिंगल डोज भी मिस करने को नहीं बोलना। बीडी डोजिंग है, 90 mg बीडी लेना ही है, एक गोली पर मिस नहीं करेगी, नहीं केलं तर स्टेन थ्रोम्बोसिस होऊ शकतं, पता की भेज देना।
करने का, ठीक है। अभी आ गए पेशेंट एजुकेशन। अब पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से? टैकी एरिथमियाज होते 5 to 10% केसेस में जो है तो इक्टोपिक बीट प्रोड्यूस होते, और अगर मल्टीपल सिंगल इक्टोपिक बीट्स प्रोड्यूस होते जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमिया हो सकता, वेंट्रिकुलर फेलियर में जा सकता पेशेंट। अगर बीटा तो ठीक है, आगे अदर कॉम्प्लिकेशन इज ब्रेडी एरिथमिया, जो है तो साइनस स्टैंड स्टिल हो सकता, साइनस अरेस्ट हो सकता 10 to 20% केसेस में, और जंक्शनल एस्केप बीट्स भी जो है तो प्रोड्यूस हो सकते। फिर उसके बाद कार्डियक फेलियर, अगर 30% ऑफ मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन है, 30% मोर देन 30% अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, देन इट विल लीड्स टू कार्डियक फेलियर। और इसके कॉजेस ये भी हो सकते, रप्चर ऑफ माइट्रल वॉल, पैपिलरी मसल का रप्चर अगर हो रहा, वेंट्रिकुलर सेप्टम का रप्चर हो रहा, तो इट विल लीड टू कार्डियक फेलियर। देन अगेन पेशेंट जो कैन एमआर होता पेशेंट को एंटेरोल एमआई में अगर पैपिलरी मसल रप्चर हुआ तो माइट्रल डिवेजिटेशन होता, उसकी वजह से भी फेलियर हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता पेशेंट को। कार्डियोजेनिक शॉक में जो है तो पेशेंट जो है पहले आपने एरिथमिया बोला, आपने फेलियर बोला, आप शॉक बोल रहे हैं, आगे शॉक के पेशेंट के सिम्टम्स जो है तो हाँ, कोल्ड ठीक है, शॉक का अपन मैनेजमेंट लीजिए, देखिए आगे और म्यूरल थ्रोम्बस अगर है तो मोस्ट कॉमनली चांस है इम्बोलाई की, तो Okay. इम्बोलाई हो सकता पेशेंट को 50% अगर एरिथमिया केसेस। है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, और अगर पेशेंट को थ्रोम्बस बन गया तो उसके से एम्बोलाइज कार्डियोमिक फिनोमेना। ओके पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता, ओके और उसमें जो है तो पेरिकार्डाइटिस में आपको फ्रिक्शनल रब जो है तो पता चलेगी पेशेंट में, जो 50% केसेस में हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। और लेट कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें सिंड्रोम ऑफ ड्रेसलर 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 सिंड्रोम में जो है तो पेशेंट के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन हुई, उसकी वजह से ये 1 to 6 वीक्स के बाद भी होता है। गुड लेट कॉम्प्लिकेशन है, लेट 4 कॉम्प्लिकेशन to 6 के बाद में होता। हाँ, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में तुमने एक भूल गए चीज, वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर, सेप्टम का रप्चर हो सेप्टम का भी हो जिससे सकता है, कार्डियक फेलियर हो जाए। हाँ, और डेथ भी हो सकता है। एक कौन से डे को होता है यूजुअली? 4th डे को होता है। 4th to 7th डे के बीच में वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर या सेप्टल रप्चर हो सकता है, शॉक में जाता है पेशेंट, फेलियर में जाता है, डेथ के रिस्क पे रहते हैं। और ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, अरिथमिया हो गया, फेलियर हो गया, शॉक हो गया, वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर हो गया, कार्डियोमिक फिनोमेना हो गया, ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आ गया। लेट कॉम्प्लिकेशन में आ गया अभी ऑटोइम्यून फिनोमेना, ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम इज ऑटोइम्यून फिनोमेना आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट पेरिकार्डियम एंड प्लूरा। तो उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस होता पेशेंट को फीवर की कंप्लेंट रहती, और इन्फ्यूजन भी हो सकता है। प्रोमिनेंट सिम्टम इज चेस्ट पेन एंड डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, दोनों चीजें रहती, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस रहता है, उसके साथ फीवर और बाकी चीजें। एंड हैंड शोल्डर सिंड्रोम हो सकता पेशेंट को, जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो उसमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता, वेरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म भी हो सकता। यस, अगर स्कार रहा तो अर्ली, अगर स्कार अगर ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट पड़ा तो स्कार होता, अर्ली कॉम्प्लिकेशन इज रप्चर, लेट कॉम्प्लिकेशन इज एनेरिज्म। एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में बस हो गया ना, हाँ, वही थोड़ा कितना बाकी है अभी? जरूर लास्ट पेज हो गया ना?